Hello and welcome to the class of economics students. As you all know that we have recently finished or we have covered the law of demand with its assumption and exceptions. People who have watched the video definitely they will aware, and people who are still remaining or not watched, please go and watch the video. You will understand, and this is very important to understand the law of demand with its assumption and exceptions. Understand? Now today's topic is very easy and very short. A very small topic is there, and the topic is, today we are going to discuss about the individual demand and market demand. Though it was your first topic in the chapter, if you see the beginning of the demand analysis, this was your first topic, but as you all know that syllabus got totally changed. So this topic in the past year, in the last year, this topic was at the last, but now what board people did, they put this topic in the beginning. So that doesn't matter, that doesn't create any effect on our study. So what I thought that we should cover this topic at the second end, or at the end of this session, or at the end of the chapter. Understand? Now let's start with the individual demand and market demand. First I will ask you a question first, and then you have to ask yourself what sir is asking, then what answer you get. Let's see whether it is matching with this or not. Understand? So let us start with the first topic, is your individual demand. Now these are two different words. One is your individual, another one is your demand. Demand we are already aware. It starts with desire backed by willingness and ability to buy. Understand? First of all, demand is clear. Now but you have to think about individual demand. Now what do you mean by individual? Single. Very nice. Single demand, when it comes, कब आता है सिंगल डिमांड, या किसी भी इंडिविजुअल डिमांड, या इंडिविजुअल डिमांड कब देख सकते हैं? Okay, so we have a explanation over here. So quantity demanded by one consumer, simple as that. If you see, quantity demanded by one consumer at a given price during given period of time. Full stop नहीं लगाया. Understand? Let me repeat. Quantity demanded by one consumer. Underline कर देता हूं इसको. Quantity demanded by one consumer at a given price during given period of time. हिंदी में बोलूं, एक वक्त में एक कंज्यूमर एक प्राइस पे जितनी कमोडिटीज बाय करता है वो उसकी इंडिविजुअल डिमांड होती है. फिर से रिपीट करूं, बहुतों को समझ गया होगा बट फिर से रिपीट करता हूं. एक वक्त में एक कंज्यूमर एक बार में एक प्राइस पर जितनी कमोडिटीज परचेज करता है अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से, वो उसकी इंडिविजुअल डिमांड होती है. अब इसे प्रैक्टिकली देखेंगे. आप बाजार में गए, यू हैव 200 और यू हैव 300 रुपीज, यू वांटेड टू परचेज an umbrella. If you see there is a rainy season, now that price of that umbrella that definitely should suits with your pocket money or whatever money you bought in the market. Understand? So अगर वो सूट हो गया उसके साथ में, so अगर आपको दो लेना है, अगर आपने तीन लिया तो आपका इंडिविजुअल डिमांड हो गया. So how many umbrellas you purchased? 3. So that was demanded by you only. That was your single demand, individual demand. समझ में आई? एग्जांपल ध्यान में रखो, यही एग्जांपल मैं बाद में आपको मार्केट डिमांड में देने वाला हूं. क्लियर हो गया? एक बार में एक कंज्यूमर एक प्राइस पे जितनी कमोडिटीज बाय करता है वो उसकी इंडिविजुअल डिमांड होती है. इसी एक्सप्लेनेशन के बेस पर, बेसिस ऑन दिस एक्सप्लेनेशन और ऑन दिस नोट ओनली, वी मेड द टेबल. दिस इज कॉल्ड शेड्यूल. एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द शेड्यूल, लेट अस डिस्कस दिस. The schedule is the tabular representation. Now what do you mean by tabular? Tabular means table representation. I again use the blue marker. Again it will not be visible. Visibility again will be a problem, but still this is not difficult to understand. It is very similar to your law of table of your law of demand. Understand? So you see, the schedule is tabular representation showing different quantities. The schedule is the tabular representation showing different quantities, and missing है इधर, quantities of commodities. ठीक है?
that an individual, again the word is used, individual consumer is prepared to buy at various prices over a given period of time. बराबर है? So ये देखिए, अभी आप बोलेंगे सर इसमें थोड़ा डिफरेंस है. डिफरेंस कुछ भी नहीं है. यहाँ पे अगर ये वर्ड यूज किया है कि वेरियस प्राइसेस, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ यहाँ पे वेरियस प्राइसेस है तो उसके साथ वेरियस डिमांड भी है ना. समझ में आया क्या? तो जब प्राइस, when the price of commodity suppose it is x, when the price of commodity x was rupees 10, then the demand was 1, so this has become the single demand. समझ लिया? ये किसी A का है. There is a person A, when the price of the commodity of x was rupees 10, then the quantity demanded was 1, so this was the consumer A's demand. Then we have a different consumer, price fall to 8, then demand increases. Then third we have a, so this is how your single demand or individual demand created. Understand? So this tabular representation shows the individual demand. Now based on the tabular representation, this is called schedule, this is called diagram. This is your individual demand curve. It is very much similar with the law of demand curve. This is also slopes downward from left to right. Understand? This is also based on this table which shows the inverse relationship between demand and price. So it is not difficult to understand, and that's why I have covered the law of demand first. ये करता था मैं पहले तो आपको ये नहीं समझता था. इस लॉ ऑफ डिमांड आपको क्लियर हो गया रहेगा तो उसका लॉ ऑफ डिमांड का टेबल, लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम देखोगे तो ये आपके इंडिविजुअल डिमांड से मैच होता है. अंडरस्टैंड? ये हुआ आपका इंडिविजुअल डिमांड. इतना है. अभी बोलोगे सर इसका एक्सप्लेनेशन, तो वो आप खुद भी कर सकते हो, अदरवाइज बुक में है, थोड़ा होमवर्क भी किया करो. समझ में आया? इसका एक्सप्लेनेशन और इसका एक्सप्लेनेशन दोनों भी आपके बुक में है. पीडीएफ जो शेयर किया है उसमें है, वहां से पढ़ने का. एज सिंपल दैट. अंडरस्टैंड? मूविंग टू द मार्केट डिमांड. ये थोड़ा बड़ा है, बट अगर ये समझा है तो आपको ये डेफिनेटली समझ जाएगा. जैसे द वे वी हैव स्टार्टेड विद द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, अगेन वी आर गोना स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ मार्केट डिमांड. इट इज very much similar with the individual demand. Here it was a one consumer, here we have a all the consumers. Understand? Here we took one consumer, we took the example of one consumer. Here we have to consider all the consumers at a same, everything is same at given price during a given period of time. Look at this, at a price during given period of time. This was all same, this was all same. Market demand, this is individual demand, is total demand. Now what this is, it is one consumer demand. Understand? So this is one consumer demand, this is total demand of all consumers. That's why it is called market demand, because in the market we get different consumers. Understand? So we here market considers demand for each and every consumer. Here we only consider single consumer, but here we are going to discuss about the entire market consumers, and we are going to discuss about their demand. Understand? हिंदी में बोलूं क्या? यहाँ इंडिविजुअल के बारे में बात किया, यहाँ मार्केट में घूम रहे सारे कंज्यूमर्स के बारे में बात करना है. तो मार्केट में कितने कंज्यूमर्स होंगे एक ही कमोडिटी के लिए? इसी मार्केट के लिए मार्केट में कितने कंज्यूमर होंगे? मान लिया ये कमल सर का है, ये कमल सर की डिमांड है, कमल सर का प्राइस के ऊपर से उनका डिमांड हुआ. अभी यहाँ पे मनीष सर है, यहाँ पे आपके सुरेश सर है, यहाँ पे आपके त्रिलेश सर है, यहाँ पे कमल सर भी आ जाएंगे, यहाँ पे कमल सर भी आ जाएंगे, मनीष सर भी आ जाएंगे, अनिल सर भी आ जाएंगे, त्रिलेश सर भी आ जाएंगे. ऐसे न जाने कितने कंज्यूमर मार्केट में घूम रहे हैं. उन सब की डिमांड को ही हम लोग यहाँ पे अभी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे और उसके आधार पर डायग्राम बनाएंगे आप खुद. वो भी ऐसी होगी, वो भी ऐसा ही होगा. कंज्यूमर तो कंज्यूमर है, मार्केट में जाने के बाद उसका नेचर बदल जाएगा क्या? ऐसा नहीं है. कंज्यूमर यहाँ पे भी कंज्यूमर है, कंज्यूमर वहां पे भी कंज्यूमर है. अगर वहां ये प्राइस हाई होने पर अपनी डिमांड को लो करता है तो यहाँ पर भी प्राइस हाई होने के बाद अपनी डिमांड को लो करेगा. सो विल सी हाउ ही रिएक्ट्स. लेट्स डिस्कस. सो अब मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया. कॉलम क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी. फर्स्ट कॉलम प्राइस ऑफ कमोडिटी. कमोडिटी क्या है? एक्स. यहां सेकंड कॉलम है क्वांटिटी ऑफ एक्स डिमांडेड बाय इन केजीज. किलो में, किलो में खरीद रहे हो. एक्स समझ लो शक्कर है,
x क्या हो गई, शक्कर हो गई। शक्कर हमने x समझ लिया और उसका डिमांड केजी में है और कंज्यूमर कितने हैं, 3। कौन कौन है, आलू, बालू और चालू। सो शॉर्ट फॉर्म में ले लिया ABC, ठीक है। आलू बालू चालू 3 हो गए। अब यहां पे हमारे पास उनकी प्राइसेस है, ये वही प्राइसेस है जो यहां पर है, सेम है। मैं क्यों डिफरेंट करूं, कंज्यूमर कौन सा डिफरेंस हुआ है, ये भी तो वही गया ना मार्केट में। सो ये उसकी एक किली थी, यहां उसको मार्केट में दिखाएंगे, प्राइस वही है। अब आलू ने जो लिया, मान लिया आलू when the price of commodity of or shakkar was ₹10 per kg, आलू has demanded 5 kg। अब थोड़ा रेट ऑफ स्पीच कम करता हूं और आपसे पूछता हूं, अगर शक्कर की कीमत 10 रुपया प्रति किलो है और आलू 5 किलो खरीदता है, तो क्या भालू भी 5 किलो ही खरीदेगा? आपसे पूछता हूं, ये कम हो सकता है या ये ज्यादा हो सकता है? दोनों हो सकता है। अज्यूम करते हैं कि ये 10 kg है और चालू, ये उससे अज्यूम करना पड़ेगा कि ये भी उससे ज्यादा है। क्यों? ये रीजन हम बाद में डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड, ये रीजन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी वो रीजन डिस्कस करने लायक नहीं है, रीजन उसके नीचे है। रीजन ये है कि इनकम इफेक्ट है। हो सकता है पहले कंज्यूमर की आलू की इनकम कम है तो 5 किलो खरीदा, भालू की उससे ज्यादा है तो उसने 10 खरीदा, और चालू की इन दोनों से ज्यादा है इसलिए उसने 15 किलो खरीदा। So just because of income effect, you get these reasons in the textbook. मैं वो भी एक्सप्लेन करने वाला इसके बाद, वो 2-5 मिनट लगे उसको एक्सप्लेन करने को, बट ऐसे ही समझ लो, इनकम इफेक्ट होने की वजह से इन तीनों की डिमांड अलग अलग है और यह ज्यादा है। पहला लाइन समझा, when the price was ₹10, आलू has demanded 5 kg of shakkar, भालू demanded 10 kg of shakkar, चालू demanded 15 kg of shakkar, sugar. Now the price falls to 8 rupees. When price falls to 8 rupees, the consumer behavior is what? Demand will definitely increases. So aloo has demanded 10 kg, bhalu 15, chalu 20, and so on. Then price falls to 6, again it fall down 6. जब ये 6 हुआ तो इसने 15 खरीदा, ये 20 और ये 25। जब और प्राइस गिर गई 4 रुपए किलो तो 20, 25, 30। पूछोगे क्यों? अगेन आई विल से इट इज इनकम इफेक्ट, नॉट ओनली इनकम, बहुत सारी रीजन हो सकती है। 2, नाउ द प्राइस फॉल्स टू ₹2, 2 पे 25, 30, 35 और इससे ज्यादा भी हो सकती है, अंडरस्टैंड। नाउ सर आपने मार्केट डिमांड कैसे बनता है, अब बताओ मार्केट डिमांड कैसे बनेगा। अब आप कौन है, अब आप एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर बन के देखो, प्रोड्यूसर बन के देखोगे तो आपको मिलेगा कि जब प्राइस ₹10 थी, जब प्राइस ₹10 थी तो प्रोड्यूसर कहता है कि मार्केट डिमांड वाज A plus B plus C becomes अमूल घी 30। समझा क्या? ये 30 हो गया। जब प्राइस था 10, कौन कह रहा है ऐसा? ऐसा कौन ऑब्जर्व किया? कौन ऑब्जर्व किया? ये प्रोड्यूसर ऑब्जर्व किया। कौन ऑब्जर्व किया? ये प्रोड्यूसर ऑब्जर्व किया कि when the price was ₹10, the market demand was 30. Price falls to 8. Market demand becomes A plus B plus C. 35 plus 10 कितना होता है? बराबर है ना? देखो ना 30, मेरा थोड़ा मैथ्स कमजोर है। 45, 6 हो गई मार्केट डिमांड, सॉरी प्राइस हो गई 6, तो भी कितना हुआ मार्केट डिमांड? 60 होता है क्या? देखो 60 बराबर है। अब होगा 75 शायद, और अब होगा 90। मैथ्स थोड़ा कमजोर है, अंडरस्टैंड। ये ऑब्जर्वेशन प्रोड्यूसर का है। The way price was falling down, market demand was increasing. This was observed by the producer. Now he will write a history that when the price was 10, demand was 30, and when price was 2, demand becomes 90 kg for entire market.
So what you have seen, what producer observed? Producer observed the same thing which we have learned in the law of demand. When the price of the commodity was higher, the demand was lower, and at the same time when the price becomes lower, demand becomes higher. Vice versa, demand shows inverse relationship with its price. Understand? ये उसका जो यहाँ पे लिखा है वही मार्केट डिमांड के बारे में लिखा है. मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज. क्या देखा आपने? डिफरेंट क्वांटिटीज. सो दिस इज योर डिफरेंट क्वांटिटीज. ये आया पहला वर्ड, क्लियर किया मैंने. डिफरेंट क्वांटिटीज क्या दिखाता है? टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज of commodity which all consumers, how many consumers we have? 3. Alu, balu, chalu, are prepared to buy at a various prices over a given period of time. We have various prices and it is over a period of time means this was observed by producer in one day, in day 1, yeah, in a month, ऐसा बोलो, एक महीने में ये उसने देखा. अंडरस्टैंड? सो होप यू हैव अंडरस्टैंड. अगर आप ये समझ गए हैं तो मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड में इतना ही है. समझ में आया? ये दोनों ही टॉपिक सिंपल है. इसमें और कोई भेद नहीं है और इसमें कोई राज नहीं है. नो सीक्रेट इज देयर टू अंडरस्टैंड व्हिच आई हैव नॉट एक्सप्रेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू. इसमें और कुछ भी नहीं है. सिर्फ आपको 2 होमवर्क करना है. पहला, इसका एक्सप्लेनेशन और डायग्राम वो ऐसा ही है, इसका भी डायग्राम ऐसा ही है. करना क्या मालूम है? प्राइस तो वही रहेगी, सिर्फ ये जो है ना मार्केट डिमांड वो यहां ले लेना आप इस एक्स एक्सिस पे. वाई पे तो प्राइस रहेगा हमेशा, क्योंकि हम क्या दिखा रहे हैं? प्राइस के साथ डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप ना. तो प्राइस में वेरिएंट्स आ रहा है ना, तो उसको हमेशा वाई एक्सिस पे लेने का रहता है. जिसमें वेरिएंट्स आएगा उसको वाई एक्सिस पे लेने का. ठीक है? सो यहाँ पे इस मार्केट डिमांड को x एक्सिस पे ले लो. प्राइस इज स्टिल कांस्टेंट, सो इट विल बी on y axis. You have to take and then you draw same diagram. This diagram will same from, I mean whatever diagram you will get ना, that will be same with your individual demand. अरे बॉस सिंपल बोलूं, देखो यही इंडिविजुअल डिमांड, यही कमल उठ के मार्केट में गया है ना, यही कमल उठ के यहाँ पे गया, वही त्रिलेज है और वही मनीष है. बस बात समझ में आई क्या? तो ये तीनों भी एक, अब हटा दो इन लोगों को, अलग अलग कर दो तो ये इंडिविजुअल हो गए. तीनों अगर सेपरेट हो गए तो इंडिविजुअल हो गए. टुगेदर आ गए तो क्या बन जाती है? मार्केट डिमांड. सो एज आई सेड, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट दिस टॉपिक इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. देयर इज नो सीक्रेट बिहाइंड इट. ये आपका लॉ ऑफ डिमांड होने के बाद ही होना चाहिए था, इसलिए उसके बाद हुआ. आपको समझ गया होगा, नहीं समझ गया होगा थोड़ा बुक का सहारा ले लो. अब जो दूसरा काम मैंने आपको बताया था, डायग्राम तो आपको बनाना है, वो आपको दे. दूसरा डायग्राम ये कि इसका डिस्टिंग्विश आप बनाएंगे. समझ में आया? डिस्टिंग्विश बनाएंगे और व्हाट्सएप करेंगे. मनीष सर को ग्रुप में डाल देना जितने लोगों ने किया है. समझ में आया? कंपलसरी है ये आपका काम है. बहुत दिन हो गया मैंने आपको कोई काम नहीं दिया था, तो ये आपने करना है. अब इसके बाद बहुत लोगों ने पूछा सर ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, या इसका भी डिमांड कर्व फॉलिंग डाउन क्यों होता है. तो उसके आगे के रीजन जो 5 है ना, 5 वो बुक में है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप पढ़ना. उसके बहुत सारे रीजन है. इनकम इफेक्ट है, कुछ कंज्यूमर का लॉ ऑफ डीएमयू इफेक्ट है. लॉ ऑफ डीएमयू में पढ़ा था ना आपने, व्हेन प्राइस हायर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस. समझ में आया कि नहीं? वो जैसा है ना, वो सारे रीजन है, वो आप पढ़ने का है. अगर आप नहीं समझे तो आप मेरे को पूछो सर ये नहीं समझ में आया, देन विल अगेन क्रिएट अ न्यू वीडियो ऑन दैट 5 रीजंस. समझा क्या? Understand? So it was enough. Now we'll see the next topic which we're gonna discuss, that is types of demand. ठीक है? So ये आपको समझ जाएगा और समझना ही चाहिए. इतना बड़ा अगर लॉ ऑफ डिमांड, एजम्पशन, एक्सेप्शन समझ सकते हो तो ये तो 2 मार्क का भी नहीं. समझ में आया? समझ जाएगा. चलिए देखते रहिए, समझते रहिए. थैंक यू.